Hello everyone, welcome to my Digi Classrooms powered by A1 Toppers Academy. Before starting this video, please kindly subscribe this channel and click on the bell icon to get regular updates from our channel. Today our topic is redox reactions. Redox reaction is a combination of two words, red and ox. The word red means reduction. The word ox means oxidation. What is the meaning of word reduction? Reduction का meaning क्या होता है? Reduction का meaning है, it may be defined as the addition of hydrogen to the substance or the removal from a substance. अगर किसी भी reaction में either hydrogen add हो रही हो या oxygen remove हो रही हो, तो उस reaction को हम बोलेंगे reduction reaction. For example, on your screens there is a one reaction given here. Hydrogen when react with a fluorine gas, it forms hydrogen fluoride. So in this reaction, hydrogen is added to fluorine. So it means addition of hydrogen takes place. So this is a reduction process. Now we move on to the oxidation. Oxidation may be defined as the reaction which involves the addition of oxygen or either the removal of hydrogen. So in this reaction, carbon when reacts with oxygen, or we can say that when carbon is burnt in the presence of oxygen, it forms carbon dioxide. So here oxygen is added to the carbon, it forms carbon dioxide. When magnesium is burnt in the presence of oxygen, it forms magnesium oxide. So in this, oxygen is added to magnesium. So this process is called as oxidation process. Now we move on to the next. What is redox? Redox is a reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously. So ऐसी reaction जिसके अंदर oxidation और reduction process दोनों इकट्ठे ही होते हैं. For example, in this reaction, copper oxide when reacts with carbon, it forms copper plus carbon dioxide. So आप इस reaction में देख पा रहे हैं, copper oxide ने oxygen को lose किया और वो copper में convert हुई by losing oxygen. So this is called as reduction. Carbon ने on the other side oxygen को gain किया और वो carbon dioxide में convert हुई. So what is it? It is oxidation. So ये reaction में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे ही प्लेस हुए हैं. सो हम इसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन. सो इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? दैट इज कार्बन. एंड वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है दैट इज कॉल्ड एज कॉपर ऑक्साइड. नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. इन आयरन ऑक्साइड को जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हो, सो व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो अब आप देखेंगे आयरन ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है? आयरन में, बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन प्रोसेस. कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑन द अदर हैंड गेन किया है ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. सो इन दिस रिएक्शन अगेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस simultaneously. So it is an example of a redox reaction. Now dear student, there are two more concepts in this. One is oxidizing agents and one is reducing agents. तो हम सबसे पहले देखेंगे agents क्या होते हैं. So we will take very common example. जैसे there are a lot of people which are working as an agent like LIC agent, insurance agent. तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बेसिकली एक पर्सन को एक कंपनी से मिलाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है तो मैंने किसी एजेंट से कांटेक्ट किया, तो उस एजेंट ने मेरी पॉलिसी LIC में करवा दी. सो एजेंट का मतलब क्या है? किसी दूसरे का वर्क करवाना, किसी दूसरे को हेल्प करना नेक्स्ट पर्सन के साथ मिलने में. तो इसमें भी ऐसे ही होता है डियर स्टूडेंट्स. लाइक कॉपर ऑक्साइड एक सब्सटेंस है जो रिड्यूस हुआ है, बट उसको रिड्यूस करवाने में किसने हेल्प किया? कार्बन ने. तो कार्बन हियर एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज कार्बन ने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कराने में हेल्प किया है. तो इस रिएक्शन में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा. ऑन द अदर हैंड कार्बन इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है, बट कॉपर ऑक्साइड इज अ सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स in oxidation. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Oxidizing agent. So look at the definition. Oxidizing agent, they are also called as oxidants. A substance which helps the other substance to undergo oxidation, it is called as oxidizing agents or oxidants. And reducing agents are what? A substance which helps the other substance to undergo reduction is called as reducing agent. So in this reaction, oxidizing agent is what? Copper oxide, and reducing agent is what? Carbon. Now dear students, electronic concepts of oxidation and reduction. So according to the electronic concept, oxidation is loss of electrons, reduction is
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, सो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ऑन द अदर साइड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो आप यहाँ पे एक जर्नल एग्जांपल देख रहे हैं। एक्स एक सब्सटेंस है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। सो एक्स ने लूज किए हैं तो एक्स इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, वाई ने गेन किए हैं तो वाई इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो अगर एक्स ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ऑन द अदर हैंड y is the substance reduced and it acts as a oxidizing agent। तो यहाँ पे हम एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। जिंक को जब हमने कॉपर टू पॉजिटिव से रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, जिंक इट चेंजेस इनटू जिंक टू पॉजिटिव एंड कॉपर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिंक ने क्या किया है, जिंक ने बेसिक 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, ऑन द अदर हैंड कॉपर ने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाया तो जिंक एक्ट्स एज अ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो हम इसको बोलेंगे इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब कॉपर ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो कॉपर इज अ सब्सटेंस रिड्यूस, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में, तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे करोजन। Corrosion is a process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture and acids on their surface। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसके अंदर आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस की प्रोडक्शन हुई है। वो कैसी हुई है, आयरन को जब हम एक्सपोज करते हैं मॉइस्ट एयर के अंदर तो वो वहां से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट। सो रस्टिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। सो ये एक कॉमन फिनोमिना है जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के। सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग पेंट्स एंड ऑयल्स। अगर हम पेंट्स और ऑयल्स को यूज करेंगे तो वो एक कोटिंग बनाते हैं और उसको फर्दर रेस्ट होने से बचाते हैं। सेकेंड इज बाय यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। तो हमारे पास कुछ ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड इज बाय कवरिंग इट विद अ लेयर ऑफ जिंक। अगर हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मेटल को जिंक की लेयर से प्रोटेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वानाइजेशन। फोर्थ इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसके ऊपर किसी भी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट किया जाता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, देयर इज अ स्पून, स्पून के ऊपर हम लोग सिल्वर की कोटिंग करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी, इट इज आल्सो द कॉमन फिनोमिना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा अगर आपका फूड कभी लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज पड़ा रहे तो उसके अंदर से एक अनप्लीजेंट स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज हमारे फूड के अंदर होते हैं ऑयल्स और फैट्स। अगर उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो वो अंडरगो जो होते हैं ऑक्सीडेशन के, जिसके कारण वो रेंसिड हो जाते हैं, तो हम उनको बोलेंगे रेंसिड। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ब्रेड की रेंसिडिटी हुई है। सो हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करवाने के। फर्स्ट मेथड इज बाय रेफ्रिजरेशन, second is by vacuum packing, third is by storing food in airtight containers, fourth is by storing food away from the light, and the fifth is by packing food in the presence of nitrogen gas, and sixth is by using antioxidants। तो हम इनमें से किसी भी प्रोसेस को यूज करके अपने फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके अंदर आप लोगों ने सीखा रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, और ऑक्सीडेशन का हमारी लाइफ में कहां पे यूज है, कहां पे ये इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हमने करोजन और रेंसिडिटी के बारे में समझा और हमने कुछ मेथड सीखे जिसकी हेल्प से हम करोजन और रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। So thank you for watching this. Please like this video, subscribe this channel and share it with your friends. So thank you everybody.